ओके, सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। द एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स इज 3.6 पर यूनिट। पर यूनिट मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एंड इट्स टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 9,000 रुपीज पर एनम। सो टोटल भी दिया हुआ एनुअल टोटल। What would be its economic order quantity for material X if there is no safety stock? यार बहुत सिंपल सी बात है, आप टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओ। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो 9,000 रुपीज़ दिया हुआ है, EOQ नहीं मालूम, divide by 2 into this is 3.6. okay, so EOQ is basically 9,000, ये जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 3.6। into 2 divided by 3.6. So this will give you 18,000 divided by 3.6. Answer is 5,000. Done. Question number 11. The following information relating to a type of raw material is available. Annual demand is 2,000 units. The unit price is 20. Ordering cost per order is obviously O. Storage and interest are your carrying cost, and lead time is half month, means 15 days. Calculate economic order quantity and total annual inventory cost of the raw material. Okay, so EOQ is basically your, this is your A. So 2 into A मतलब 2,000 into O मतलब 20 divide by the carrying cost जो कि यूनिट प्राइस का 10% होगा। 20 का 10% इज 2 रुपया। सो दिस शुड गिव यू 80,000 अपॉन 2, 40,000 और 200 यूनिट आएंगे। ये तो बहुत सिंपल था। Total annual inventory cost. Annual inventory cost is basically your purchase, ordering and carrying. So ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल देता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, let's read it. KL Limited produces product M which has a quarterly demand of 8,000 units. किसकी डिमांड? प्रोडक्ट की डिमांड। प्रोडक्ट का मतलब फिनिश गुड्स, हम फिनिश गुड्स नहीं, हम मटेरियल टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली डिमांड ऑफ द फिनिश गुड्स। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स, द फिनिश गुड्स रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ X फॉर एवरी फिनिश्ड यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। So 1 unit of finished product will require 3 kg of raw material, and the other informations are as follows. Cost of material X, that is purchase price, cost of placing an order, carrying cost is obviously your C, 15% per annum of the average inventory. So 15% of this 20 rupees, 15% of 20 rupees will give you 3 rupees. Okay. You are required to calculate the economic order quantity for material X, and should the company accept an offer of 2% discount by the supplier if he wants to supply the annual requirement of material X in 4 equal quarterly installments only. ठीक है, बोलता है 4 बार से ज़्यादा इधर दिखने का भी नहीं, खाली 4 बार आओ मटेरियल खरीदने के लिए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं ये इसका ये जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So first part is calculation of EOQ.
calculation of economic order quantity. Okay, so for that you'll need annual consumption of raw material. शॉर्ट फॉर्म में से ए बोलते हैं, ठीक है। अपने पास ये है नहीं, सो एक काम करो, पहले एनुअल प्रोडक्शन तो निकाल लो। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स विल बी, देखो 8000 यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग इन अ क्वार्टर। एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में तुम लोग 8000 यूनिट्स बनाते हो। सो साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। So this will be 8000 into 4, 32,000 units per annum you are producing, and for that your annual consumption of raw material is going to be 32,000 units into, एक यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है? 3 kg into 3 kgs per unit. This will be 96,000 kgs your annual consumption. चलो, अगर annual consumption आ गया तो we can calculate now your EOQ. 2 into A into O upon C. 2 into 96,000 into the ordering cost, that is 1,000 rupees per order, and the carrying cost is 3 rupees. So this is 1,000 divided by 20 का 15%, that is 3 rupees. Okay, so let's calculate economic order quantity. 2 into 96,000 into 1,000 divide by 3, 6 crore 40 lakhs. Put that in bracket, root, this will give you 8,000 units. So after solving this we are getting economic order quantity as 8,000 units. Okay, अब प्रॉब्लम क्या है कि यार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आ गई, लेकिन एक सप्लायर का ऑफर है जिसको लेके हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। सप्लायर बोलता है कि मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, सप्लायर बोलता है मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, लेकिन यहाँ पे बार बार मत आया करो ऐसे 8-8 हज़ार यूनिट्स खरीदने आ जाते हो। सिर्फ साल में 4 बार इधर दिखना और वो भी 3 महीने में 1 बार आ जाना, इसके बदले में डिस्काउंट ले लो, ठीक है। सो सप्लायर का ये ऑफ़र जो डिस्काउंट का है, इतनी बेइज्जती जो कर रहा है वो अपनी, बोलता है 3 बार ही दिखना, उससे ज़्यादा दिखना मत, डिस्काउंट लेके जाओ चलेगा। सो क्या इसका डिस्काउंट ऑफ़र हम लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ये कैलकुलेशन अपने को करनी है, पार्ट 2। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफ़र गिवन बाय द सप्लायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस अपनी कॉस्ट निकालनी है। एक बार आप रेगुलर EOQ पे कॉस्ट निकालिए, और एक बार वही कॉस्ट आप डिस्काउंट ऑफर पे निकालिए। देखो यार, बेइज्जती करने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हमारा खर्चा कम हो रहा है तो बेइज्जती भी सह लेंगे, सप्लायर बोलेगा 3 बार 4 बार ही आने का, वो भी सह लेंगे हम लोग।
चलो, मटेरियल की कॉस्ट में आता क्या है बेसिकली मटेरियल की कॉस्ट में आता क्या है? सबसे पहले यू हैव दिस ऑर्डरिंग कॉस्ट, बिकॉज यार पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट ए और योर ए डिवाइड बाय योर EOQ or ROQ, how many number of units you are ordering, into the ordering cost per order. Okay, so यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो we are out of 96,000, हम लोग एक बार में सिर्फ 8,000 ही खरीदते हैं. सो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? आई थिंक कुछ 12.5 ऑर्डर्स. 96,000 डिवाइड बाय 8,000, 12 ऑर्डर्स इनटू एक बार ऑर्डर करने का आपका 1,000 रुपये का खर्चा होता है, 1,000 रुपये का खर्चा. सो 96,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 1,000 रुपये, 8,000 एक बार में मंगा रहे हो तो आपको 12 ऑर्डर प्लेस करने हैं इंटू 1,000. सो इन शॉर्ट आपका 12,000 का खर्चा होगा. यहाँ पे आप सिर्फ 4 बार आ रहे हो, 4 क्वार्टर्स, 4 बार, और एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 1,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया. इन शॉर्ट आपको कहीं ना कहीं 4,000 रुपये के खर्चे करने पड़ेंगे. सेकेंड इज योर परचेज कॉस्ट. 96,000 इंटू द परचेज प्राइस वॉज 20 रुपीज़ पर kg. सो 96,000 इंटू 20, कितने में गुड्स खरीदते थे हम लोग पहले? लेट्स गेट दैट अमाउंट, 19,20,000. ओके, अब क्या होगा? अब इसमें से डिस्काउंट मिलेगा. 19,20,000 में से 2% माइनस कर दो, आपकी सेलिंग प्राइस में से 2% माइनस करो. सो नाउ द परचेज प्राइस में से 96,000 इंटू 20 में से अगर मैंने 2% माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 20 माइनस 2%, 19.6. The new selling price is 19.6. So 96,000 units or kgs you are going to purchase into 19.6 the purchase price. Now it will be 18,81,600. Okay, and third is your carrying cost. Carrying cost. Okay, so carrying cost is basically EOQ or ROQ upon 2 into C. Okay, so यहाँ पे हम लोग एक बार में 8,000 यूनिट्स मंगा रहे हैं. 8,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 रुपया. सो ऑब्वियसली एट EOQ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर गोइंग टू बी सेम. देखो सेम भी आ रहा है. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आएगा. आप साल में 4 ही ऑर्डर्स मंगवा रहे हो, मतलब एक बार में कितना केजीज खरीदोगे? एक बार में 96,000 डिवाइड बाय 4 ऑर्डर, मतलब एक बार में आप 24,000 केजीज खरीद रहे हो. उसको कैरी करना पड़ेगा, मतलब एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय 2 कर दिया, और आपका 19.6 इसका 15% is your carrying cost now. Okay, 19.6 का 15%. So 19.6 into 15% is 2.94 into 12,000. So this will give you 35,280. So अब क्या करें? टोटल करके देख लो. व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट? $19,20,000 प्लस 24, ये 12,000, ये 12,000 और ये 19,20,000. दिस विल बिकम 19,44,000. और अगर डिस्काउंट की बात मान ली हमने तो 4,000
प्लस 35 280 प्लस 18,81,600, ये आपको आ रहा है आंसर 19,20,880। तो खर्चे में सेविंग आ गई। सी, खर्चा आपका कम हो गया। कितने से कम हो गया? 19,44,000, 23,120 से। खर्चा कम हो गया, तो क्या करें फिर? कंक्लूजन इज दैट कंपनी should select suppliers discount offer, suppliers discount offer। इसका डिस्काउंट ऑफर सेलेक्ट कर लिया जाना चाहिए, बिकॉज इसमें हमारा ही फ़ायदा है। कितने का फ़ायदा है? 23,120 का। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सो यू कैन टेक दिस एज होमवर्क। इसमें एक आप 40 ले लीजिए, एक 50, 100 और एक 200 ले लीजिए। इस तरह से आपको आंसर आ जाएंगे। कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। देखिए, इन्होंने 0 to 49 वो तो लिया ही नहीं, इग्नोर ही कर दिया, बट आप 40 ले सकते हो और इस तरह से आपको आंसर आ जाएंगे। Okay, this question 16 is homework. Easy questions हैं ये सब। एग्ज़ाम में ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यार। ये अच्छा क्वेश्चन आया। 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें चेक हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य लिमिटेड produces product EXC, product का मतलब क्या? finished goods, using a raw material D, so D is your raw material. To produce 1 unit of EXC, 2 kgs of D is required, so raw material जो लगता है वो डबल लगता है। As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 10,000 units. Able to sell मतलब, sell मतलब यार obviously finished goods. Okay, so अगले साल हम 10,000 यूनिट्स बेचने वाले हैं, ऐसा हमें लग रहा है। एंड द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल डी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रॉ मटेरियल के बारे में दी हुई है। द री ऑर्डर क्वांटिटी इज 200 kg लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो कंपनी इज नॉट फॉलोइंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कंपनी जो है EOQ से 200 किलो कम ऑर्डर करती है प्रेजेंटली। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg more than average consumption per day. Maximum is 20 kg more than average. 20 kg more than average. Okay. There is an opening stock of 1000 kg. किसका ओपनिंग स्टॉक? देखो ऊपर ही लिखा हुआ है यार, रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया इन्होंने। ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो रॉ मटेरियल के बारे में है, तो स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब ये किसका स्टॉक है? मटेरियल का स्टॉक है। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days. ऑब्वियसली दिस इज योर डिलीवरी पीरियड। ओके, एंड द परचेज प्राइस इज ₹125 per kg. दिस इज योर P. There is an opening stock of 900 units of the finished product EXC, and the rate of interest charged by the bank on cash credit facility is 13.676%. This is your carrying cost. To place an order, the company has to incur 720 on paper and documentation work. This is ordering cost. From the above information, find out the following is in relation of raw material D. Reorder quantity, that is your
रीऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज दैट द कंपनी इज फॉलोइंग, और ये EOQ से 200 किलो कम है, इतना हमको मालूम है। सो यार फिर काहे का टेंशन, फिर तो आप EOQ निकालो और उसमें से 200 किलो माइनस करो, आ जाएगा आपको ROQ, बिकॉज ROQ इज 200 kg लेस देन EOQ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल you need ROQ, you need ROL as well, reorder level as well, okay, and then the minimum stock level, calculate the impact on the profitability of the company by not ordering the EOQ. Not ordering EOQ, presently अपना जो ROQ है, ROQ is 200 kg less than EOQ। सो ये जो इतनी बड़ी गलती कर रही है कंपनी EOQ ना फॉलो करके, उसकी वजह से उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ओके। एंड यू हैव टू टेक 364 डेज इन अ ईयर। दिन आप साल में कितने दिन अज्यूम करोगे? 364, ओके। होते नहीं है बट यू हैव टू अज्यूम, यस, फॉर कैलकुलेशन पर्पस। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत कहाँ हुई थी? यहाँ, ओके। सो पहले इन्होंने जो है आपको सेल के बारे में बताया है, 10,000 kg ये सेल करने वाला है, और 10,000 kg का जो सेल है उसके लिए फॉर दैट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज ऑब्वियसली 2 kg पर यूनिट, ठीक है। सो थोड़ा सा एक आपको एक बजट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बजट की ही बात हो रही है। देखिए ये नेक्स्ट ईयर के बजट की बात हो रही है, तो बजट का कॉन्सेप्ट क्या है? सी लिसन, योर बजटेड सेल्स क्वांटिटी ऑब्वियसली सेल्स इज ऑफ फिनिश गुड्स। सो हमको 10,000 किलो 10,000 kg और 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स ऑफ EXE ये बेचना है। नेक्स्ट ईयर में, लेकिन अपने पास 900 यूनिट्स ऑलरेडी हैं, सो लेस द ओपनिंग स्टॉक दैट यू ऑलरेडी है, वो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 900 यूनिट्स। याद करो बजट में हम लोग कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, बजट में हम लोग रॉ मटेरियल का परचेज क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? पहले हम प्रोडक्शन निकालते हैं, प्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग कंजम्पशन निकालते हैं ऑफ रॉ मटेरियल, और कंजम्पशन में स्टॉक ऐड लेस करके हम परचेज तक जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर पता करना पड़ेगा कि हमको एक बार में कितना परचेज करना चाहिए। सो दिस इज योर प्रोडक्शन क्वांटिटी, दैट इज 9,100 यूनिट्स। और हर एक को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल कितना लगता है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट इज 2 kgs। सो ऑब्वियसली आपका टोटल जो कंजम्पशन होने वाला है, टोटल कंजम्पशन दैट विल बी 18,200 kgs। अच्छा, तो क्या मुझे पूरा 18,200 kgs खरीदना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यू हैव द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान से देखो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल D है, 1000 kgs तुम्हारे पास पहले से है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1000 kgs। सो वी ऑलरेडी हैव 1000 kgs इन द ओपनिंग स्टॉक। सो ये 1000 kg हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नहीं खरीदना पड़ेगा। सो आपको परचेज कितना करना पड़ेगा? योर एनुअल परचेज इन kgs इज 17,200 kgs। सो क्योंकि बजट वाला टॉपिक हो चुका है तो वी कैन रिलेट दिस, ओके। और EOQ में हमें ये देखा जाता है कि एक बार में कितना परचेज करना चाहिए, तो आपको टोटल परचेज क्वांटिटी चाहिए होती है, एंड दिस इज योर टोटल परचेज क्वांटिटी, ओके। चलो, तो एक बहुत बड़ा काम हमने कर लिया जो क्वेश्चन का मेन पार्ट था। नाउ वी कैन मूव ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ EOQ का पार्ट 1,
हमको क्या पूछा इन्होंने, रीऑर्डर क्वांटिटी पूछी है, दे आर आस्किंग रीऑर्डर क्वांटिटी, बट हमको मालूम है यार EOQ मिल जाए तो उसमें से 200 किलो माइनस करेंगे, विल गेट ROQ. So first let's calculate EOQ, and EOQ is 2 into annual purchase quantity, that is 17,200, into the ordering cost, that is 720. Yes, paper and documentation work 720, divide by purchase price is how much, 125, उसका 13.76%, 125 into 13.76%. Let's calculate EOQ. 2 into 17,200 into 720. Okay, so this is 2,47,68,000. Divide by 125 into 13.76%, 17.2. Okay, now we can get EOQ. 247,68,000 divided by 17.2, 14,40,000. It's 1200. So your EOQ is 1200 kgs. देखो आइडियली तो वी शुड परचेज EOQ, लेकिन कंपनी गलती कर रही है. कंपनी इज परचेजिंग एट 200 kgs लेस देन EOQ. सो ROQ इज EOQ माइनस 200 kgs. ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, हम लोग अपनी बनी बनाई बातें नहीं कर रहे हैं. सो 1200 माइनस 200 will give you 1000 kgs as your ROQ. Okay, so एक बड़ा काम हम लोगों ने कर लिया. We have calculated ROQ. Part 1 is done. Now maximum stock level. For that you need minimum consumption per day, और minimum consumption आपके पास नहीं है. You have maximum consumption which is 20 kg more than the average consumption per day. So एक बार average मिल जाए, एक बार maximum मिल जाए, in that case we can calculate our minimum consumption as well. So part 2 is maximum stock level. Okay, for that you'll need average consumption per day, and this is nothing but your annual consumption divided by 364 days. So your annual consumption is how much? See, consumption is 18,200 divided by 364 days. So 18,200 kgs divided by 364 days will give you your average consumption per day. Okay, so 18,200 divided by 364, this is 50 kgs. So on an average you are consuming 50 kgs. Okay, so what will be your maximum consumption then? Maximum consumption is 20 kg more than average consumption per day. Maximum consumption per day is equal to 50 kgs plus 20 kgs.
this will give you 70 kgs per day. Okay, and for this maximum stock level ka formula, we need minimum consumption per day. In that case, what will be my minimum consumption? See, your average consumption is basically minimum plus maximum divided by 2. Average consumption per day is equal to minimum consumption plus maximum consumption divided by 2. Now you know average is 50, minimum नहीं मालूम, maximum 70 है, and this is 2. In that case your minimum consumption is going to be what? 50 into 2, ये मल्टीप्लाई हो गया और 70 उसमें से माइनस, सो दैट इज 30 kgs. ओके, सिंपल सा. और यह एक मैथमेटिकल रूल भी है कि आपका एवरेज 50 आ रहा है, मैक्स 70 है, 20 ज़्यादा, सो जो मिनिमम होगा वो 20 कम होगा, जो मिनिमम होगा वो ऑब्वियसली 20 कम होगा, बिकॉज एवरेज बीच में आता है. सो दिस हैज़ टू बी 30. ठीक है, मैथमेटिकली शॉर्टकट है ये. अगर MCQs वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग फटाफट ऐसे कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव गॉट द मिनिमम कंजम्पशन पर डे. नाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल. चलो लेट्स स्टार्ट. मैक्सिमम स्टॉक level is what? Reorder level plus reorder quantity. और अपने पास तो reorder level भी नहीं है, so we'll have to calculate that also. चलो पहले वही निकाल लेते हैं. Reorder level is equal to max consumption into max delivery period. Max delivery period. Okay, so max consumption you have got as 70, and maximum delivery period that the supplier is going to take is कितना दिन? 4 to 8, मतलब 8 दिन. So 70 kgs a day maximum that you can consume. 70 kgs into supplier को आने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लग जाएंगे. सो बहुत देर कर देगा सप्लायर आने में, तब तक हम लोग 70 into 8 560 kgs तो कंज्यूम कर चुके होंगे. ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट योर मैक्सिमम लेवल. मैक्स लेवल इज बेसिकली ROL प्लस ROQ माइनस minimum usage or consumption into minimum delivery period. So now we have all 4 numbers. Reorder level is 560, reorder quantity is 1000, minimum usage is 30 kgs into minimum delivery period is 4 days. So 1560 minus 120, this will give you 1440 kgs as your maximum level. Okay, maximum level
440 kgs. You can see the answer also. चलो, the second part is done. What is your minimum level? यार ये तो बहुत easy है. Let's get the minimum level. Part 3. Minimum level. Okay, minimum level is basically what? ROL minus average usage into average delivery period. Okay, so ROL is 560 minus average usage is 50 kgs and average delivery period is 6. So 560 in minus 300 will give us 260 kgs as your minimum level. Okay, now see what next they are asking. Calculate the impact on profitability of the company by not ordering the EOQ. कोई बात नहीं, EOQ पे ऑर्डर नहीं कर रहे, हम लोग निकाल लेते हैं क्या इम्पैक्ट है. पार्ट 3. टोटल कॉस्ट. अच्छा, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट. सबसे पहले आप लोग एट EOQ और एट ROQ. देखिए, परचेज प्राइस सेम है तो यहाँ पे अपने को परचेज कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दैट विल बी सेम. ओके, सो जब परचेज प्राइस सेम हो और आपको डिसाइड करना हो या कि कितना खर्चा हो गया, तो आप सिर्फ बस ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए. सो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं. फर्स्ट लेट्स गेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. 17,200 यूनिट्स हमको बनाने थे और EOQ 1200 आ रहा था. सो 17,200 डिवाइड बाय EOQ 1200. How many orders? 17,200 divided by 1200. 14.33 orders. 14.33 ऑर्डर्स. और यहाँ पे हम लोग ROQ पे 1000 यूनिट्स मंगा रहे थे एक बार में. सो दैट विल गिव मी 17.2 ऑर्डर्स. मैं पूरे ही ले रहा हूँ, ऑल दो ऑर्डर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल, मैं पूरे ले रहा हूँ फिर भी यार. ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग करेक्ट करेंगे. सो व्हाट विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगता है एक बार में? 720. सो 14.33 इंटू 720, दिस विल गिव यू 10,320. द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 720. 17.2 इंटू 720 विल गिव यू 12,384. This is your ordering cost if you are doing if you are ordering at ROQ. Second is your carrying cost. Carrying cost is basically the quantity that you order, that is EOQ upon 2 into, it was 17.2. Okay, how come 17.2? We have already calculated the carrying cost here. You can see that this part, this C. Okay, so this is the carrying cost, 17.2. Same thing here, we are ordering 1000 divided by 2
into 17.2. Okay, so at EOQ the carrying cost should be same as ordering cost. Let's see, 1200 divided by 2 into 17.2, it is coming as 10,320. करेक्ट आ रहा है. और ROQ फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली उतना आंसर नहीं आएगा. इट विल बी डिफरेंट. 1000 डिवाइड बाई 2, एवरेज क्वांटिटी इज 500 इंटू 17.2, द नंबर द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर kg per annum. So this is 8,600. Okay, so what is your total cost? Total ordering and carrying cost. This will be 20,640. और अगर EOQ फॉलो नहीं किया तो हमने क्या गलती कर दी, कितने ज़्यादा खर्चे कर दिए. 12,384 प्लस 8,600, दिस 20,984. कितना खर्चा ज़्यादा हो गया, लेट्स सी. माइनस 20,640, 344 रुपीज़ हमने ज़्यादा खर्च कर दिया. सो बाय नॉट फॉलोइंग EOQ, company's profit is reduced by rupees 344 because the cost is more by 344. और यहाँ पे इनको कितना आ रहा है, 440 आ रहा है बिकॉज दे हैव टेकन फुल ऑर्डर्स. ओके, सो थोड़ा सा लगाएगा. आप भी फुल ले सकते हो बिकॉज प्रैक्टिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल. ओके, सो ICI दोनों तरीके से सॉल्व करता है, हमने भी दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ है. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे फ्रेट प्लस हैंडलिंग कॉस्ट वाज गिवन, फिर कैरिंग कॉस्ट पर kg पर मंथ में दिया हुआ था. बस वहाँ 0.50 था और यहाँ 0.25 है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज द क्वेश्चन वी हैव डन इन द प्रैक्टिस मैनर ओनली. सो दिस इज होमवर्क. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज देयर where you are required to find out maximum consumption per day and minimum consumption per day, whereas the stock levels are given. Okay, so this question is homework. You'll have to try this. उसके बाद आपके स्टोर लेजर्स मतलब FIFO वेटेड एवरेज स्टार्ट हो रहा है. FIFO LIFO वेटेड एवरेज मेथड. दिस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में probably this chapter will get over. Okay, bye bye.